الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه الذين فازوا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ ظلم وہ ظلم ہے، ابھرے گا تو دب جائے گا۔ قوم مسلم کا خون وہ خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ گاڑا خون ہے نا، قوم مسلم کا خون وہ خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ لیکن جب بھی ہم اٹھ گئے ہیں شمشیر وقوف ہو کر، دیکھا ہے اس زمین پر چشمے فلک نہ رو کر، اور باطن سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ سب سے پہلے آپ حضرات درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ میں نے آپ حضرات سے کہا کہ آپ حضرات درود پاک پڑھیے، تو آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن آپ خاموش رہے۔ خالد بھائی زور سے درود پاک پڑھیے۔ محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس دنیا سے ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو ضرور جانا ہے۔ انسان تین چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک اپنے وطن سے، اپنی بستی سے، اپنی جائے پیدائش سے، دوسرا اپنی جان سے، اور جان سے محبت ہونی بھی چاہیے۔ شریعت نے بھی حکم دیا کہ اگر کوئی گلے پر چھرا رکھ دے اور پھر کہے کہ تو کلمہ کفر کہہ ورنہ تو تجھ کو مار دیا جائے گا، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ کفر اس وقت کہنا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ جان کی بات ہے۔ انسان اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز، انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تینوں کی قربانی پیش کی ہے میرے دوستوں۔ یہ قربانی جو ہم 2-3 دن کے بعد میں کرنے والے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اپنی اولاد کی قربانی پیش کی ہے، اور اپنے وطن کی قربانی پیش کی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش اس دور میں ہوتی ہے کہ نمرود کے دور میں ہوتی ہے۔ نمرود جس کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی، پوری دنیا کا وہ بادشاہ تھا۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، جن کی سلطنت پوری دنیا پر تھی۔ 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ سکندر ذوالقرنین یہ مسلمان ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ مسلمان ہے، اور یہ نمرود یہ کافر جس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی۔ بخت نصر اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ حضرت محترم نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس دور میں پیدا ہوتے ہیں جب دنیا نمرود کو خدا بنائے ہوئے تھی، جب لوگ گائے کی پوجا کر رہے تھے، جب لوگ بتوں کو پوج رہے تھے، جب لوگ سورج کی پرستش کر رہے تھے، جب لوگ سورج کو اپنا خدا بنائے ہوئے تھے، جب لوگ چاند کو اپنا خدا بنائے ہوئے تھے، ایسے عالم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں، اے لوگوں یہ تمہارے خدا نہیں ہے، تمہارا خدا وہ ہے جس نے کہ ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو کہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے کہ ان بتوں کو پیدا کیا ہے، جس نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے اس آسمان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ
खलीलुल्लाह अपनी कौम को तबलीग कर रहे हैं, अपनी कौम को समझा रहे हैं। यहाँ तक कि उन लोगों का साल में एक दिन मेला लगता था, ईद होती थी, और जब वो सब लोग अपने मेले को चले गए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने मकान के अंदर आते हैं, अपने हाथ में कुल्हाड़ी को लेते हैं और बुतखाने में पहुंचकर जितने भी बुत रखे हुए थे तमाम को तोड़ देते हैं, पाश पाश कर देते हैं, रेजा रेजा कर देते हैं। खुदा का कुरान कहता है फजअलहुम जुसासन इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। तमाम बुतों को तोड़ दिया, पाश पाश कर दिया, रेजा रेजा कर दिया, जो उनमें सबसे बड़ा था उसको छोड़ दिया, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि लोग इसकी तरफ पलट कर आए। अब जब लोगों ने अपने खुदाओं का यह हाल देखा, जब लोगों ने अपने खुदाओं की नाकें टूटी हुई देखी, जब लोगों ने अपने खुदाओं के हाथ टूटे हुए देखे, पैर टूटे हुए देखे, जिस्म सलामत नहीं देखे, लोग आग बबूला हो गए, गुस्से में दमखूद हो गए और आपस में जिक्र करने लगे, मशवरा करने लगे कि आखिर ये कौन कर सकता है। एक शख्स कहता है कि ये किसी और का काम नहीं बल्कि ये इब्राहिम खलीलुल्लाह का काम है। फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, उस शख्स को इब्राहिम कहा जाता है। एक नौजवान है जिसका जिक्र किया जाता है और उसको इब्राहिम कहा जाता है। अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बुलाया जाता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते हैं, ए लोगों मुझसे क्या पूछते हो? जिसके कांधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई है, जिस बड़े बुत के कांधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई है, इसी से पूछ लो कि किसने तोड़ा है। हो सकता है कि इसने सोचा हो कि मैं सबसे बड़ा हूं और मुझ बड़े की मौजूदगी में इन छोटों को पूजा जाए। लाओ, आज कोई नहीं देख रहा, इनको तोड़ दिया जाए, पाश पाश कर दिया जाए। हो सकता है कि इसी ने तोड़ दिया, इसी से पूछो। फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून, इनसे पूछो, अगर ये बोल सकते हो तो इनसे पूछो। और आप भी बोल सकते हो तो सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून, अगर ये बोल सकते हैं तो तुम इनसे पूछ लो। यहाँ तक कि लोग लाजवाब हो गए। आपकी शिकायत नमरूद के दरबार में की गई, नमरूद के दरबार में आपको बुलाया जाता है। नमरूद के दरबार में आने का एक तरीका था, जो कोई भी नमरूद के दरबार में आता वो नमरूद को सजदा करते हुए आता। लेकिन जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नमरूद के दरबार में आते हैं तो नमरूद को सजदा नहीं करते। नमरूद पूछता है, ऐ इब्राहिम तेरा खुदा कौन है? तूने हमको सजदा नहीं किया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बयान फरमाते हैं, ऐ नमरूद मेरा खुदा वो है, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा खुदा वो है जो कि मारता है और जिलाता है। मेरा खुदा मारता है और जिलाता है। नमरूद दो कैदियों को बुलाता है और कहता है, नमरूद तेरा खुदा वो है जो मारता है और जिलाता है, तो देख इसको फांसी होने वाली है और ये रिहा होने वाला है, लेकिन जो शख्स रिहा होने वाला है उसको अभी फांसी होगी, और जिसको फांसी होने वाली थी इसको मैं रिहा कर रहा हूं। एक मैंने एक को मार दिया और एक को जिला दिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह समझ गए कि ये अहमक है, ये बेवकूफ है, ये इसकी समझ में ऐसे नहीं आएगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बयान फरमाया कि मेरा खुदा वो है, याती बिशम्सी मिनल मशरिक़ी फाती बिहा मिनल मगरिब, मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबोता है। अरे तू अगर खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक में डुबो। फबुहितल्लज़ी कफर, काफिर हक्का बक्का रह गया, परेशान हो गया, ज़लीलो ख्वार हो गया भरे मजमे में। जब काफिर परेशान हुआ, नमरूद हैरान हुआ। अब लोगों ने नमरूद से कहा, क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम, नमरूद बादशाह सलामत, इब्राहिम को जिंदा आग में जला दो। वंसुरू आलिहतकुम, और अपने खुदाओं की मदद करो। क्या कहा? अपने खुदाओं की मदद करो। याद रखो मेरे दोस्तों, काफिर वो होता है जो अपने खुदा की मदद करता है, खुद अपने खुदा का हाथ बनाता है, खुद अपने खुदा की नाक बनाता है, उसके कान बनाता है, उसके जिस्म की आज़ा बनाता है, उसके पैर बनाता है। काफिर अपने खुदा की मदद करता है, लेकिन मुसलमानों की मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत किया करता है। जंग बदर के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की, जंग ओहद के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की। जब वो 313 थे तो व्यवस्था था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं बड़ा।
वंसुरु आलिहतकुम, अपने खुदाओं की मदद करो। अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग के अंदर डाला जा रहा है। 40 दिन तक आग जलती रही, यहाँ तक कि जब वो आग आसमान से बातें करने लगी और जब कोई परिंदा उस आग के ऊपर से गुजरता तो वो झुलस कर राख हो जाता। जब इतनी ज्यादा वो आग तेज हो गई, अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मिंजनीक के जरिए उस आग के अंदर डाला जा रहा है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास हजरत मीकाईल आते हैं, मदद करना चाहते हैं, इसराफील आते हैं, मदद करना चाहते हैं, इजराइल आते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपने सभी से मना फरमा दिया। यहाँ तक कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, अर्ज किया कि या इब्राहिम अला का हाजतुन, ए इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताइए, कोई जरूरत हो तो बताइए, मैं वहां तक जा सकता हूँ जहां तक कि कोई नहीं जा सकता। अब आइए मेरे नबी की बारगाह आलिया में आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मेराज की रात है, हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ है। आपने पहले आसमान का सफर किया, दूसरे आसमान का सफर किया, यहाँ तक के सातों आसमानों के ऊपर जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो हजरत जिब्रील ठहर गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोसत परम, या रसूल अल्लाह यहाँ से आगे मैं बाल के बराबर भी यहाँ से आगे मैं नहीं बढ़ सकता, या रसूल अल्लाह मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी अब इतनी ताकत नहीं कि मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं यही ठहर जाता हूँ। मेरे नबी मुस्कुराए, मेरे नबी मुस्कुराए, आमना का लाल मुस्कुराया और इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल याद करो उस मंजर को, याद करो उस वक्त को, याद करो उस लम्हे को जब तुमने मेरे दादा जान इब्राहिम खलीलुल्लाह से क्या कहा था, क्या कहा था या रसूल अल्लाह, क्या कहा था आप ही बताइए, क्या कहा था? तुमने कहा था ए इब्राहिम मैं वहां तक जा सकता हूँ जहां तक कि कोई नहीं जा सकता। आज सुन ले, आमना का लाल वहां तक जाएगा जहां तक जिब्राइल, मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक के कोई नहीं जा सकता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया था, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह मुझको इजाजत दीजिए, मैं इस आग को बुझा दूंगा, मैं इस आग के ऊपर पानी डाल दूंगा। लेकिन आपने फरमाया, ए जिब्रील ये आग किसके हुक्म से लगी है? अर्ज किया गया अल्लाह के हुक्म से लगी है। क्या अल्लाह को मेरे हाल की खबर है या नहीं? ए इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह को आपके हाल की खबर है, अल्लाह आपके हाल को आपसे ज्यादा जानता है। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, ए जिब्रील अगर अल्लाह की मर्जी ये है कि इब्राहिम आग में कूद जाए, इब्राहिम आज आग में कूद जाएगा, इब्राहिम आज आग में छलांग लगा देगा अपने रब को राजी करने के लिए, आज इब्राहिम आग में कूद जाएगा। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में छलांग लगा देते हैं, इधर आपने आग में छलांग लगाई, उधर अल्लाह ने हुक्म दिया, या नारो कूनी सलाम अला इब्राहिम, ए आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। आपने पहली कुर्बानी अपनी जान की पेश की, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 17 साल की थी, 17 साल की, और आज 20 साल का नौजवान है, हट्टा कट्टा, कोई हुनर नहीं, कोई फन नहीं, कोई तालीम नहीं, कोई तरबियत नहीं, 17 साल की उम्र है आपकी, आग में छलांग लगा अपनी कुर्बानी पेश की। आपके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, अर्ज करते रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रातों को उठ उठ कर दुआ करते, मौला मुझको नेक बेटा अता फरमा, नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उनको नेक बेटे की बशारत दी। 80 साल के बाद में आपके यहाँ एक चांद के जैसे बेटे की पैदाइश हुई, नाम रखा गया इस्माइल। अल्लाह ने फरमाया अब इसको मेरी रजा हासिल करने के लिए, मुझको राजी करने के लिए बेआबो गया जंगल में छोड़ आओ। आपने अपनी अहलिया हजरत हाजरा को लिया, हजरत इस्माइल को लिया, चलने लगे चलने लगे चलने लगे, यहाँ तक के जहाँ इस वक्त मक्का शरीफ आबाद है, वहां जब सवारी पहुंची, सवारी खुद ही ठहर गई। हाथी पे गैबी से आवाज आई, वो बात ये गैर जी जरा यही है। आपने अपनी अहलिया हजरत हाजरा को उतारा, उनकी गोद में अपने बेटे इस्माइल को दिया, उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और चलने लगे चलने लगे, यहाँ तक कि वो बीवी जो कि अभी तक खामोश थी, जो कि सब्र और शुक्र की पैकर बनी हुई थी, अभी तक खामोश थी, अर्ज करती है, ऐ मेरे शोहर नामदार, अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो मुझको माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझको माफ कर देना, इसलिए कि आप हमको यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ मौत के
सिवा कोई चारा नहीं है, यहाँ सिर्फ मौत है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ घास नहीं है, यहाँ कोई परिंदा नहीं है, इसलिए कि परिंदा जिंदा रहेगा पानी से, यहाँ पानी ही मौजूद नहीं है। लेकिन ए मेरे शोहरे नामदार, गलती मुझसे हो सकती है, लेकिन मेरा जो ये बेटा है, ये हमारा जो बेटा हमको 80 साल के बाद में हमको मिला है, आखिर इससे कौन सी खता हो सकती है? ये मासूम सा बच्चा है, इसको आप अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन आपने अपनी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। दूसरी मर्तबा फिर आपकी अहलिया ने यही जुमले दोहराए, आपने उनकी तरफ निगाह दौड़ाकर नहीं देखा। तीसरी मर्तबा वो सब्र शुक्र की पैकर, वो बावफा बीवी, वो बाशाआर बीवी, वो अर्ज करती है, वो नेक सालेह बीवी, वो अर्ज करती है, हुजूर ए मेरे सरताज, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आप की आंखों में अश्क जारी हो जाते हैं, आप फरमाते हैं हाँ हाँ मेरी शरीके हयात, ये अल्लाह का हुक्म है। आप अर्ज करती हैं, हुजूर आप जो ये हमको पानी देकर जा रहे हैं, ले जाइए, खजूरे दे रहे हैं, ले जाइए। अरे जो खुदा हमको 80 साल के बाद में बेटा दे सकता है, वो हमारी बेटे की हिफाजत भी कर सकता है। जो खुदा हमको बेटा दे सकता है, वो हमारे बेटे की हिफाजत भी कर सकता है। बच्चे की, औलाद की कुर्बानी। और यही बच्चा फलम्मा बलग मअहु साया, कुछ बड़ा हो गया, कुछ बड़ा हो गया, तो आप आए और आपने आकर कहा क़ाल अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझको ज़िबह कर रहा हूं, बता इसमें तेरी क्या राय है, बता इसमें तेरी क्या राय है, तेरा क्या मशवरा है? आजकल का बेटा होता तो क्या कहता, तू बाप है या साले? जब पैदा हुआ तो बेआब हो गया, जंगल में छोड़ गया, अब कुछ बड़ा हुआ तो कुर्बान करने के लिए चला आया, तू बाप है या सालिम? लेकिन सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अर्ज किया था, अब्बा फुसूल काला या अबा तिफअल मा तुअमर, अब्बा जान ये कुर्बानी क्या चीज है, आप कर गुजरिए जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है। सतजुदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे। हजरत मोहतरम उस वक्त आपने जो है अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रख दी। वो फरिश्ते जिन्होंने कहा था मौला जलवा दिखा, मंजर दिखा, इब्राहिम खलील तेरा है, दोस्त तेरा है, मोहब्बत अपनी औलाद से करता है, मोहब्बत अपनी बीवी से करता है, उस वक्त फरिश्ते रो रहे हैं, गुरो गिलमा रो रही है, फरिश्ते रो रहे हैं, नूरी मखलूक रो रही है, अर्ज करती है मौला बाप बेटे को ज़िबा कर रहा है, मौला बेटे को बचा ले, मौला बेटे की पेशानी में नूरे मोहम्मदी है, मौला नूरे मोहम्मदी है, इसको बचा ले, अर्ज करते। लेकिन अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों तुम ही तो नजारा देखना चाहते थे, तुम ही तो मंजर देखना चाहते थे, देखो मेरे खलील को, मेरा खलील मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। 40 मरतबा आपने अपने बेटे इस्माइल के हल्क पर छुरी को चलाया, लेकिन छुरी नहीं चली, आपने छुरी को फेंका, छुरी पत्थर पर जाकर लगी, पत्थर के तो टुकड़े हो गए। आपने फरमाया ऐ छुरी क्या मेरे बेटे इस्माइल का पत्थर से ज्यादा सख्त है? छुरी ने अर्ज किया था हुजूर जिस खुदा ने आपको कुर्बानी का हुक्म दिया है, उसी खुदा ने मुझको इस्माइल का बाल काटने से भी मना किया है। 70 मरतबा मुझको हुक्म दिया है कि इस्माइल का बाल भी न कट जाए। आपने उस वक्त जो है छुरी को फिर से अपने हाथ में लिया और चलाने लगे। फरिश्ते रो रहे हैं, हुरो गिरमा रो रही है, नूरी मखलूक रो रही है, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म होता ऐ जिब्राइल जन्नत चला जा। वो दुम्बा जो कि 40,000 साल से चल रहा है, ये इब्राहिम है, इब्राहिम और इसका बेटा इस्माइल, ये आज बगैर कुर्बानी के नहीं मानेगा। दुम्बा ले जा, इस्माइल को हटा दे, दुम्बे को मिटा दे, कुर्बानी हो जाएगी। इब्राहिम खुश हो